It defies belief, like a post-apocalyptic scenario straight out of some dystopian sci-fi flick. A mysterious pestilence descended on the planet and struck fear in the heart of mankind. Terrified, we all went into hiding. We called it a lockdown. Our daily routines a distant memory. Now there are no office commutes or walks in the park. No Monday blues, no longing for the weekends. Confined to the four walls of our houses, we're all feeling a bit disoriented, somewhat alone. But in this strange time, each of our seemingly disparate stories are part of the same narrative. India under lockdown. It's been over 6 weeks now. I'm in Meerut district of Uttar Pradesh. This is India's most populous state. My hometown is close by and I have made this journey many times in the past. It usually takes just about an hour and a half to drive here from Delhi, but today it's taken me just 45 minutes. I've never quite seen anything like this. The roads are deserted, but the skies are aflutter with birds. I'm looking for a hamlet that's been in the news recently. Ghat village is being spoken about as a model village for the measures that its residents have taken to combat the spread of the coronavirus. It's a gorgeous village, typical sugarcane and wheat planted in the fields. There is some harvesting going on, and there are people who are cutting the crop, which I suppose is an essential service now. So I'm going to try and actually find out if I'm on the right track, because I have been looking for a while, and find out where this village is. If they talk to me, that is. Well, wouldn't be surprised if they don't. So, apparently at Ghat village, everyone is adhering to social distancing norms, wearing masks, and even subsisting largely on produce that's grown in the village. भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? सुशील है जी। सुशील। सुशील? हाँ जी। तो सुशील आजकल सुशील हैं कि नहीं है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो आप लोग मतलब खेतों में काम चल रहा है ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक ठाक चल रहा है। आप लोगों ने बंद नहीं किया खेतों में? बंद नहीं करा जी, पर युवा अपनी दूरी बनाए रखे हैं सब। दूरी तो हाँ मैं देख रहा हूँ, आप लोग सब काफी दूर दूर हैं। हाँ, परेशानी तो है ही इससे खैर, और जो 2 रुपए की चीज है वो 4 रुपए में मिल रही है। हाँ ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या, और मिल नहीं रही। मिल नहीं रही। अब आपका ये जो कट रहा है, हाँ जी, ये इसको ले जाने के लिए है गाड़ियाँ, वो सब हाँ मंडी जाएगा ये यहाँ जाएगा जी सेंटर पे, और यहाँ से मोतीपुर मिल में जाएगा। अच्छा, घाट के निवासी आप? कहाँ पर है ये गाँव? घाट ही है जी सामने। ये सामने जो है? हाँ जी। चलिए वहीं निकलता हूँ, धन्यवाद आपका। अच्छा, गन्ना वन्ना चोख लो। गन्ना वन्ना? अरे गन्ना वन्ना बचपन में चूसते थे, आज तो दांत ही गिर जाएंगे। You know, people carry all kinds of notions about villages in India. Here is a village that is apparently more well informed and being more responsible when it comes to dealing with this outbreak than we are in the cities. So I figured it's a day's drive. I am part of essential services, so I can move around when required. And I just think that perhaps people need to see this. The village is practically closed off for outsiders, and villagers who can't avoid travel to and fro are thoroughly sanitized before being let back in. A team has been constituted and members work in 2-hour shifts around the clock to ensure this happens. सब लोग धो रहे हैं मतलब हाथ हैं? हाँ? सब लोग धो रहे हैं? अच्छा।
Okay, so I'm fully sanitized. The villagers are letting me in. They've told me to practice isolation. They've told me there are rules to be followed. I'm one of the lucky few who's getting in. Otherwise, everybody else is being turned away. So, well, here goes, folks. The biggest lockdown in history. Since the 23rd of March, 1.3 billion Indians have been confined to their homes. Now, television channels are rife with visuals of how dramatic the change has been in the cities, but there's little understanding amongst urban dwellers like me on how rural India is coping with this lockdown. And that is where, in 6.5 lakh villages, nearly 70% of this country's population lives. It's ironic, but rural India, at least if Ghat is any indication, appears to be far more organized than what we are seeing in the cities. People aren't lugging industrial quantities of supplies into cars. Neither are hapless policemen pleading with people to please stay at home. There are a few people out on the streets, but they're all wearing masks. There's no panic buying, but shops have neatly demarcated circles on the streets to maintain social distancing. नमस्कार भाई साहब। अच्छा, ये जो भीड़ है इसके लिए है? अच्छा, ये लक्ष्मण रेखा पूरे गांव में है क्या? हैं? मुझे कहना चाहिए कि मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ और शाम को 5 बजे दुकान खुलती है 8 बजे तक, 3 या 2.5 घंटे के लिए, और उस 2.5 घंटे में पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो टूट पड़ती है उस दुकान पे। और इस प्रकार की डिस्टेंसिंग तो मैंने नहीं देखी है, और वो साउथ दिल्ली है, और यहाँ पे घाट गांव में लोग पालन कर रहे हैं। बताइए, कुछ सीखें हम लोग। There's hardly any traffic except for bullock carts laden with sugarcane. Sanitation workers are busy sweeping streets, spraying disinfectant, and cleaning water channels. It appears that the residents of Ghat village have made up their minds to take no chances with the coronavirus and are going about that task with gusto. इस गांव में आवे भी नहीं कोरोना, आ भी नहीं सकता, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है, मैं वादे से कहती हूँ, सफाई भी है, खाने पीने की भी और गांव के भी। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो बस यही साफ सफाई में ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। और वो लोग बाग जाते आते रहे, उनको मास्क को कहना है, साफ सफाई में कहना है, दूरी भी रखना है, दूरी की रखना है। कोई आवे, जैसे हमारे घर का भैया दूर रहो, हम गेट लगा के रखते हैं, और अपना घर में अपने कोई चटनी मसाला बना के, अच्छा, मट्ठा अपना। और बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं। गोटी वो जो खेलते हैं, अच्छा, हाँ जी, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। 1 महीना हो गया? 1 महीना होगा जी। अच्छा, 1 महीना होगा। और मेरी ये बिटिया आ रही है इधर, ये बच्चा है, देवता है, ये भी अंदर ही। बढ़िया। कोरोना की हिम्मत नहीं जो इस गांव में आ जा। आपसे तो डर के भागेगा ही कोरोना, मुझे मालूम। इस गांव में तो आ ही नहीं सकता, मैं वादे से कह रही हूँ। राइट। और जो आ भी गया ना तन मन सा, तब खा जाऊंगी कच्चे को पकड़ कर मैं ही। कोरोना के प्रकोप से तो आपका प्रकोप मुझे ज्यादा डरावना लग रहा है इस वक्त। चलिए ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जय जी, भारत, धन्यवाद, जय हिंद। The village ladies are made of stern stuff. Did you see how her kids were cowering behind her? The schools are closed and children here are studying at home. And the teachers, they are setting an example by doing their bit. नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग मास्क बना रहे हैं। अच्छा, तो बाहर से प्रिकॉशंस के लिए हम लोग कुछ ना लाके जो हमसे हो पा रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये वैसे आप लोगों का काम भी यही है, सोइंग का? इज दैट व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग? नहीं, हमारा काम नहीं है, लेकिन अब इस टाइम पे जब हमारे सभी लोग सब कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना हम भी कुछ हेल्प करें लोगों। अच्छा, तो हम लोग अपनी साइड से ये सब लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। देख लूँ मैं एक मास्क के? हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये, अच्छा, ये सारे गाँव वालों के मास्क दिए जा रहे हैं? हाँ जी सर। Certainly more stylish than my mask. Yes. That's for sure. Okay. तो कितने बना लेती हैं आप दिन में ये? सर, दिन में 100 के आसपास हम लोग बना लेते हैं। 100 के करीब? हाँ। Yes, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल है। आंचल, आप करती क्या हैं आंचल? मैं सर बीएड कर रही हूँ, वैसे तो अच्छा। मैं टीचर भी हूँ, प्रोफेशनल। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं सर एसएसटी पढ़ाती हूँ। सोशल स्टडीज? तो अभी स्कूल तो बंद होंगे? हाँ जी सर, स्कूल बंद है। आप यहीं के स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ सर, पंचवटी इंस्टीट्यूट है इधर। अच्छा, वहाँ एकेडमी में पढ़ाती हूँ। तो अभी बंद है? हाँ जी। तो अभी आप लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस सर, उनको हम ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप वो भी कर रही हैं? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। Social messaging in the village goes on from dawn to dusk, reminding residents of their responsibilities. It also takes some inventiveness. Now, this gent here has been allowed to ride without a helmet, but that's only because
He can't take a pillion under social distancing norms. He's got to make announcements via a mic that's been tied to his chest. He's got to ride the scooty and balance a precariously tied speaker that keeps coming loose. Don't try this at home, folks. Elderly people can be seen sitting on guard. They've been given the responsibility of ensuring that youngsters don't break the lockdown and stay indoors. भाई साहब नमस्कार, ये राणा जी का घर कहाँ पर होगा? ये संजय राणा वहीं है। A village council or a Gram Sabha can have a number of representatives, but semantically speaking, a panchayat is supposed to have 5 members. In any case, under lockdown guidelines, more than 5 people are not allowed to congregate at one place. Oh, राणा जी का घर तो आ गया। चलिए। I've reached the house of Sanjay Rana, who's the Pradhan or the headman of Ghat village. There appears to be a serious discussion going on. संजय जी नमस्कार। नमस्कार आप सबका। कैसा है सब? चौपाल बैठी हुई है पूरी। हाँ सर, कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारे गांव के बारे में। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुझे अनुमति दी अपने गांव में घुसने की। मुझे मालूम है घाट में तो कोई घुस नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अनिवार्य है कि थोड़ा दुनिया को भी पता चले कि ग्रामीण इंडिया जो है इस वायरस से किस प्रकार से लड़ रहा है। सर, हमने सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी को टीवी पे सुना तो हमें लगा कि ये बहुत बुरी बीमारी है। हाँ बिल्कुल सही सोचा। एक हमने टीम अपनी गठित की जो कि बैठी हुई है वहाँ पे गाँव में एंट्री करते ही जी हमने एक टीम गठित की। मैं तो आया था, तुमने मुझसे कहा था, सब दिलवाए थे। जी जी, वो कोई 2-2 घंटे वो सीट पे बैठ रहे हैं। अच्छा। किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। जो बाहर का व्यक्ति है, बाहर का कोई सब्जी बेचने वाला है या कोई मजदूरी करने वाला है, किसी की अंदर एंट्री नहीं। तो ये 1 महीने से चालू है लगातार 1 महीने। तो आप लोग में जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनको आप लोग कैसे, मतलब सब्जी कैसे आ रही है? सब्जी कुछ हमने अपने गांव के ही चयनित किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आते हैं, उनको हमने मोहल्ले वाइज बांटा हुआ है। अच्छा। वो मोहल्ले में एक बंदा एक ही मोहल्ले में जाएगा, अच्छा। घर जाता है। अच्छा। और वो पूरा सुरक्षित तरीके से सब्जी प्रोवाइड कराता है। गाँव में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, घर का सभी के पास पशु है, दूध घर का हो रहा है, दूध घर का हो रहा है, सब्जी भी लोग उगा ले अपने घर पे जी। ही। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई परेशानी किसी चीज़ की है। तो ये बताइए इनको प्रधान जी, जब आप लोगों ने ये निश्चय लिया कि ये सब हमें करना है और इससे मतलब ये आसान काम नहीं है, लोगों को मुसीबत तो होती है, तो मतलब गांव वालों का रिएक्शन क्या था इसमें? सब मान गए आपकी बात आराम से या कैसे? शुरू में तो हमें परेशानी हुई थी, जैसे हमने शुरुआत करी, गाँव वालों को हमने समझाने का प्रयास किया जी। तो कुछ इतने अच्छे व्यक्ति उन्होंने माना, हमारी मदद भी करी और धीरे धीरे हमने फिर सबको संभाल लिया। आज की स्थिति ये है, सब लोग हमारी बात को पूर्णतः मान रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। These days, Doordarshan has been airing reruns of mythological soaps that were popular in the 1990s. Ramayana and Mahabharata continue to be runaway hits with kids and adults alike. This scene really reminds me of pre-cable television days when Doordarshan was the only channel and the entire family would wait impatiently for Sundays. Guests are equivalent to God. Now, if you really want to see the manifestation of that Sanskrit phrase, you have to come to rural India. I was about to take my leave, but Sanjay would have none of it. You've come to our house and you are not leaving without a meal, he said. सर, ये आम का अचार है, ये चटनी है, लहसुन की चटनी है। अच्छा। और ये देसी घी है गाय का जी। और दाल है और आपका साग है। अच्छा। और आलू की सब्जी। और ये सब घाट का ही है? जी, घाट का ही है और घर का ही है हमारे। अच्छा, ये तो आपके घर का ही है? घर का ही है। तो घाट में तो पता नहीं क्या क्या बन रहा होगा फिर। हाँ, तो अब आप लोगों को क्या जरूरत है फिर? कोई कमी नहीं है घाट में? नहीं सर। हाँ? बहुत बढ़िया, तभी आप लोग ये सब कर पाए हैं, मेरे को लगता है। जी जी। हाँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बाहर की दुनिया पर। जिसको जरूरत थी हम अपना देते हैं सर। अच्छा जी जी, यहाँ सब मिल बांट के हम सब करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा है और किसी के पास नहीं है हाँ जी, हाँ जी, कर देते हैं। खत्म कर दें। Home cooked food is one thing, and home cooked food on a wooden fire in a village is quite another. That, folks, was a feast if there ever was one. भूख लग गई भाई। पूरे कितनी भैंसें हैं आपके पास? पैसे
अच्छा और भैंसे गाय है। अच्छा, हेलो, ये क्या है? ये तो प्रधान का हुक्का है ये, है? ये हुक्का है, क्या है ये हुक्का? क्या है सर? क्या साइज है इसका? कर अभी तो सब बंद होगा ये। अभी बंद है सर। हाँ, गुड गुड, वाह क्या बात है। तो लंबा हो लेते हैं मेरे ख्याल से, है प्रधान जी? हाँ सर, आराम कीजिए आप। I am beat. And after that big meal, it's time to take 5. Sanjay has even got a cot pulled out for me in the veranda. To authentically depict the pastoral life, the proverbial afternoon siesta is indispensable. Among Sanjay's responsibilities as a Gram Pradhan is to interface between the village and district authorities. He's keen to show me how government rations are being distributed in the village during lockdown. Under the government's public distribution system or PDS scheme, subsidized foodstuff and other essential items are distributed across the country through a network of ration shops. The recipients have to submit biometric information while taking delivery, potentially a hazardous activity in these times. Thankfully, the villagers are being quite careful. तो वैसे ये पीडीएस स्कीम में क्या क्या मिलता है? गेहूं, चावल, अनाज क्या मिलता है? इसमें जो रेगुलर हर महीने पहले से मिलता चला रहा है जी, वो तो 1 यूनिट पे 3 किलो गेहूँ हाँ। प्रति यूनिट और 2 किलो चावल प्रति यूनिट। यूनिट बोले तो आदमी? हाँ, पर आदमी। पर आदमी, अच्छा अच्छा। अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है जी इस महीने अप्रैल में जी, एडिशनल के नाम से चावल दिया प्रति यूनिट 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार जी, कैसे हैं आज आप? ठीक है, सब ठीक ठाक? सब ठीक। तो अब आपने अपने जीवन में आपने सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा? नहीं नहीं, है ना? आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? आगे का पता नहीं तो क्या करेगी। आप लोगों का तो गांव बचा हुआ है बिल्कुल, नहीं गांव में तो कोई ऐसे है ना? मेरठ तो पिल गया पूरा है, लेकिन आप लोग 6 किलोमीटर दूर है, फिर भी आपके गांव में तो कुछ नहीं हुआ। तो मतलब कि इससे फर्क तो पड़ ही रहा है, फर्क तो पड़ ही रहा है। तो सही है, देखो आप अभी अब ऐसे ऐसे बालक भी सब कैद में है घर में ही। बालक कैद है? अच्छा, आप पहरे पे बैठे हो क्या? और अच्छा में तो अच्छा, पोते पोती सब बंद हैं, दादाजी बैठे हैं बाहर लड़ लेके। पंगा ही नहीं लेना, आपसे कौन पंगा लेगा? सही बात है मैं तो ना लूंगा। अच्छा जी, नमस्कार, निकलते हैं फिर। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, ये फिर यूसी गेट से घुसे थे हम? नहीं सर, ये एग्जिट पॉइंट है वहाँ। अच्छा, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। जी। अच्छा, तो अच्छा ये गांव से निकल गए? गाँव से निकल। चलिए, ओह क्या दिन रहा है, बहुत बढ़िया। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला अपना आज। ओह, और ये नहर भी है, ये नहर है सर, साफ पानी लग रहा है तो। बिल्कुल साफ पानी है सर, है ना? जी। बच्चे तैरते होंगे इसमें? हाँ जी, नहाते हैं इसमें। अभी तो बस लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रही, वरना अभी भी नहाते मिलते हैं यहाँ। लॉकडाउन की वजह से है? हमारे गांव वालों की जो लाइफ है वो बाहर की ज्यादा होती है। जी, क्यों होती है? गांव की कहावत रही है, आपने भी सुनी होगी, गांव में अभी भी प्रेम भाव है। बिल्कुल। खाना मैं अपने यहाँ खाऊंगा तो पानी आपके यहाँ पीऊंगा। जब तक हम सब एक दूसरे के साथ नहीं बैठ लेते तो हमारा खाना भी हजम नहीं होता सर। अच्छा। और जो हमारे गांव की एक फेमस चीज है हुक्का, जी जी, उसको हम भर के बैठ जाते हैं तो लगभग 15-20 लोग हम इकट्ठे अपना उसमें उसके सारे से बातचीत करते रहते हैं, बैठते हैं। मतलब दिनचर्या का भाग है? दिनचर्या का भाग है। क्या बैठेंगे मित्रों के साथ, अपना हुक्का चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो वो बंद हो गया? वो बंद हो गया, अभी हमने अच्छा। उसका कंट्रोल किया है। एक दूसरे के पास हम आ जा नहीं रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें हम लोगों ने बहुत परिवर्तन किया है। शुरू में ऐसा लगा नहीं था कि हम इस चीज को कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ाव इतना ज्यादा था काफी। पर हमने जब टीवी के माध्यम से देखा, पेपर के माध्यम से देखा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी डेली इस चीज को कह रहे हैं, कितनी भयंकर बीमारी है। भयंकर बीमारी को। तो फिर सब लोगों ने महसूस किया और कहा तो जान है तो जहान है। इस चीज से, कोरोना से छुटकारा पाले तो हम सब फिर ऐसे ही उसी तरह मिल बांट के रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Ghat village is a mere 6 kilometers from the town of Meerut. Proximity to the city has had its advantages. The village got electrified almost half a century back. There's no water shortage,
and concrete houses akin to the city have been constructed here for a long time now. And yet, when it comes to its social character, Ghat village might as well be on a different planet from its urban neighbor. There's a strong sense of community, and that seems to create a readiness amongst individuals to collectively face challenges that they feel affect the entire village. And if that involves personal sacrifices, then so be it. I had come to see how this small representative of rural India is implementing the lockdown. After a day at the village, I'm leaving with a sense of how social distancing, isolation, and other safety protocols work only when individuals take responsibility for others. In the cities, we've become somewhat desensitized to others' welfare. Our self-isolation has been much greater, much deeper than what this pandemic has forced upon us. Perhaps this lockdown will change that. जेमिनी सर्कस आया है शहर में। जेमिनी सर्कस। और आज मैं आपको करतब दिखाऊंगा। स्कूटर का स्पीकर लगा के और माइक लगा के और हाथ छोड़ के और एक पैर पे खड़े होकर कैसे चलाते हैं। घाट में ऐसे टैलेंटेड बंदे हैं। देखिए सभी भाई सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपने अपने घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, करीब 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर रखें, संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह बगैर कार्य के घर से बाहर ना निकले, केवल अपना कार्य करें और अंदर घर में हो जाए। बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, करीब 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर रखें, संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह बगैर कार्य के घर से बाहर ना निकले, केवल अपना कार्य करें और अंदर घर में पहुंच जाए।